class we were discussing about resonance. We have discussed about some characteristic of resonance that resonance do not have real existence. It is basically resonance. In the resonance, all the canonical structures or the resonance, the bond length of different bonds are same. A resonance hybrid has lowest energy. Greater the resonance, higher the resonance energy, more stable is the structure. A resonance is a theoretical concept with no experimental verification. Okay, next we will discuss about what is polarity and dipole moment. We have discussed that there are some compounds which are polar and other compounds are non-polar. So what is polar and non-polar compounds? In homoatomic, homo means single, एटॉमिक मतलब एक एटम से, सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोजन है H2, उनके सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंस होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो मिडल में रहती है, इक्वल अट्रैक्शंस होता है दोनों एटम से. इफ आई एम सेइंग दैट टू पर्सन्स आर देयर एंड टू पर्सन्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव अ बैटल, that means if they have a battle and if two persons are equally strong, then they will apply same force on each other. It is on the same way if same atoms molecules are applying same force on a shared pair of electrons. That's why there is no polarity. These type of compound are non-polar. The heteroatomic molecule, जैसे HCl की बात करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, HCl molecule में when sharing of electron occur, the shared pair do not in the middle, it get displaced toward more electronegative atom. That means chloride की तरफ आपका chlorine is very much electronegative. हमने last chapter में पढ़ा था that electronegativity order में सबसे highest electronegative compound fluorine होता है. उसके बाद आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड. सो इस केस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. ओके, सो ये अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्लोरीन पे और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. So it acquires partial negative and other atom has partial positive charge, due to which poles are developed and bond formed is a polar covalent bond. जो ये बॉन्ड बनता है ना भाई, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड. और जो दूसरा बॉन्ड बनता है हमारे पास जिसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो उसमें जो अट्रैक्शंस है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम रहेगा, उससे आप बोलते हो non-polar compounds. Okay, next is what is dipole moment. Now polarity, how much dipole is generated, how much electronegative or how much charges separation are there, that is done by dipole moment. So dipole moment क्या कहता है, polarity को measure करते हैं हम dipole moment की terms में. So mu is your dipole moment, that is equal to charge into distance. Q is the charge, D is the distance. So unit of dipole moments are debye. 1 debye is equal to 1 into 10 raised to power minus 18 electrostatic unit. So polarity is measured in terms of dipole moment. So dipole moment is calculated by multiplying charge into distance between two atoms. Let us calculate the dipole moment of different molecules with different atomicity. So dipole moment tells us about the structure of molecule. अगर dipole moment जीरो है तो molecule कैसा है, नॉन पोलर. अगर dipole moment नॉन जीरो है तो molecule कैसा है भाई, पोलर है. Okay, next is dipole moment and molecular structures. Let us consider a diatomic molecule. Its structure is generally linear. लीनियर मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, वो हम बता सकते हैं जस्ट बाय सीइंग द डाइपोल मोमेंट. अगर HCl है डाइपोल मोमेंट 1.07 है, HBr का डाइपोल मोमेंट 1.78 और HI का डाइपोल मोमेंट 0.78 है. दीज ऑल आर लीनियर स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब भाई आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ठीक है. तो क्लोरीन की तरफ डेल्टा नेगेटिव, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. इस वजह से आपके पास इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.07 आ जाता है और ये कंपाउंड जो है वो कैसा हो जाता है, पोलर. अब पोलैरिटी से हम ये बता सकते हैं और डाइपोल मोमेंट से ये बता सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा है कंपाउंड का, कैसा लीनियर है. नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. Their dipole moments depends upon the structure. As we know, dipole moment is a vector quantity. They will get added.
ठीक है। ये पर्टिकुलरली डाइपोल मोमेंट जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो जितना ऑक्सीजन इस तरफ से डेल्टा नेगेटिव ले रहा है उतना इस तरफ से ले रहा है, तो सेम आपका दोनों तरफ सेम लग रहा है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, इतना उस तरफ से लग रहा है, इतना उस तरफ से लग रहा है, इतना इस डायरेक्शन में लग रहा है, इतना इस डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट इज इफ वी कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, यू कैन सी दैट HNNF3, अमोनिया में H क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगी, वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा होगी, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन NF3 में फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे इसमें एरो में दिखाया गया है, तो फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो वेक्टर्स गेट सब्ट्रैक्टेड ड्यू टू दिस रीजन। नाइट्रोजन जो अमोनिया है उसका जो NF3 है उससे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है भाई, उसका रीज़न देख लो, आपको पता चल रहा है कि जैसे जो नाइट्रोजन का जो डाइपोल मूवमेंट लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, ठीक है, और इनका डाइपोल मूवमेंट भी इस तरफ लग रहा है, तो ये चारों ऐड हो जाते हैं, इसका ऊपर लग रहा है, इनका नीचे लग रहा है अलग अलग, तो ये एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसीलिए NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा रहता है NF3 से, क्योंकि NH3 में एडिशन हो जाता है और NF3 में ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन हो जाता है। I hope you understood that why ammonia has more electronegativity than NF3. Next is what are importance of dipole moment. This is important. Importance क्या रहेंगे भी, हमें पोलर और नॉन पोलर के बारे में कौन बताएगा, डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो पोलर। इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कितना पोलर कंपाउंड हुआ है उसके बारे में बताता है। मोर इज द डाइपोल मोमेंट, मोर इज द polarity. So next is it gives us the information about shape of molecule. अब molecule का shape कैसा है ये भी हमें dipole moment से पता चल सकता है। वो कैसे, अगर मैं बात करता हूँ NH3 के केस में और NF3 के केस में, मैंने dipole moment दे दिया तो मुझे पता चल जाएगा भाई NH3 जो है वो pyramidal स्ट्रक्चर है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है ना वो नॉन पोलर है, तो इसका मतलब वो लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में उस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इट गिव्स अस द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हमें ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताता है। एज वी नो दैट all ionic bonds has covalent character, likewise all covalent bonds has ionic character. In covalent HCl bond, the bond is covalent, but it has ionic character due to difference in their electronegativity. In electronegativity, difference is 1.7. The bond has 50% ionic and 50% कोवलेंट कैरेक्टर। अब इस चीज़ का ध्यान रखें भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यू होती है, जैसे फ्लोरीन है उसकी वैल्यू 4.0 है, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है, मान लिया कि 1.7 है, तो बॉन्ड में 50% आयनिक और 50% कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड कोवलेंट रहेगा, अगर डिफरेंस मोर देन 1.7 है तो बॉन्ड आयनिक रहेगा। ओके, so what is the formula for calculation of ionic percentage? Percentage of ionic character is given by observed dipole moment divided by calculated dipole moment into 100. अब observed और calculated में क्या difference है अभी? observed हम experimentally calculate करेंगे और calculated हम theoretical value से calculate करेंगे, उन दोनों को divide करेंगे, 100 से multiply करेंगे, आपके पास percentage of ionic character आ जाएगा। okay, next is what is polarization that we have discussed in वैसे हमने polarization और dipole moment के बारे में पढ़ा। ionic bond is formed by transfer of electron, as a result cation and anion are formed. So cation formed distorted, cation form जैसे भी circular होना चाहिए था, ये circular होना चाहिए था, ये distort हो जाता है थोड़ा। The shape of electron cloud of anion as shown in figure, this distortion is known as polarizability. Polarizability क्या कहती है भाई, जिस टाइम दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे कैटायन और एनायन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं।
जैसे इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में कैटायन एंड एनायंस आर देयर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनायन जो है वो बिगर इन साइज है, कैटायन स्मॉलर इन साइज है। एनायन बिगर इन साइज होता है भाई, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था। Next is distortion of electronic cloud of a negatively charged ion by a positively charged ion is known as polarizability. अब extent of polarization किसने दिया भाई? फजान्स रूल ने। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फजान्स रूल ने बताया कि कितना जो है वो पोलराइजेशन हो सकता है। सो फजान्स रूल क्या कहता है? स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इट कैन डिस्टोर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सो मोर इज पोलराइजेशन, मतलब आयन यहाँ पे कटायन से है भाई, जितना कम साइज रहेगा कटायन का उतना ही ज़्यादा डिस्टोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन लार्जर विल बी द डिस्टोर्शन एंड लार्जर विल बी द पोलराइजेशन। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम है, तो इस केस में स्मॉल साइज है किसका? लिथियम का, तो डिस्टोर्शन किस में ज़्यादा रहेगा? लिथियम में ज़्यादा रहेगा भी। अगर डिस्टोर्शन जो है वो लिथियम में ज़्यादा रहेगा, पोलराइजेशन लिथियम में ज़्यादा रहेगा, तो वो हाईएस्ट आयनिक रहेगा। और जिसमें सबसे कम डिस्टोर्शन रहेगा और पोलराइजेशन रहेगा वो मोर कोवलेंट रहेगा। तो कोवलेंट करेक्टर इस तरफ बढ़ रहा है और आयनिक करेक्टर इस तरफ घट रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज लार्जर द साइज ऑफ एनायन। जितना अनायन बड़ा होगा वो उतना इजीली डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो अनायन बड़ा होने का मतलब है कि भाई आपके पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? आयोडाइड है। तो वो बहुत इजीली डिस्टोर्ट हो जाएगा। वो डिस्टोर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब उसमें हाईएस्ट क्या रहेगा? कोवलेंट करेक्टर रहेगा। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर इज द कोवलेंट करेक्टर। जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है भाई, चार्ज का मतलब क्या है? जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है भी, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है। अब सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम +3 जो है, एल्यूमिनियम +3 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कैटायन जितना कम साइज का होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? डिस्टोर्शन करेगा। तो एल्यूमिनियम में मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन आउटरमोस्ट शेल कैन कोज मोर डिस्टोर्शन। जैसे आपके पास सोडियम है भाई, सोडियम 6 2 8 तो 10, जिसमें कैटायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट सेल में, वो ईजिली डिस्टोर्ट कर सकता है। तो ईजिली डिस्टोर्ट कर सकता है, तो कॉपर +2 जो है आउट ऑफ NaCl एंड CuCl2 आएगा भाई यहाँ पे। अगर कॉपर +2 है तो सॉरी CuCl ही आएगा, कॉपर +1 है। तो द latter means copper chloride has more covalent character. Why? The reason is copper chloride has 18 electron in the outermost cell. Understood? Next is geometry of molecule or Vesper theory. We will discuss about this Vesper theory in our next lecture, that how the theories of Lewis-Strauss structure and other theories are failed to describe all the structures. So next class we will discuss about that what is Vesper theory. अभी मैं वैसे बता देता हूँ, Vesper theory की full form होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट हाउ इट कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड इन अ वेरी नाइस एंड ईजी वे। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके।